The topic we have today now, that is syllogism. जैसे कि लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, इट्स अ नेक्स्ट लेवल ऑफ वेन डायग्राम, रीजनिंग का टॉपिक है. So let's have the basics once again. एक बार दोबारा से बेसिक्स देख लेते हैं, जल्दी से देखेंगे 1 मिनट लगाकर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को, और जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए फायदा हो जाएगा. तो 4 बेसिक रूल्स विच वी हैव इन सिलोइज्म. 1, all A or B, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है A and B, and also like this. No A or B, that means A and B, two separate circles. Third, sum of the A are B, that means A and B, and there is something which is common. And the last case, sum A are not B, that means A, the A's which are outside, and also there is a second case which we had, some of the A's are B and some of the A's are not B. अगर किसी को डिटेल में समझना है what is this, what are these cases, they can just look at the previous video which we had. It's on the YouTube also, so you guys can check that out. Now let's talk about syllogism. Syllogism के क्वेश्चंस कैसे आएंगे? The basic one, statement number 1, it says all men are herbivorous. Statement number 2, it says all men are carnivorous. Now conclusion number 1, it says some herbivorous are carnivorous, and conclusion number 2 says all herbivorous is carnivorous. Now this is the question you have. अब आपको बताना है स्टेटमेंट 1 और 2 से कंक्लूजन 1 फॉलो करता है या 2 फॉलो करता है. सो नाउ लेट्स ड्रॉ द वेन डायग्राम्स एंड लेट्स अंडरस्टैंड करना क्या है. नाउ ऑल मेन आर herbivorous, that means I can write it like all men are herbivorous. Now all men are carnivorous, so I can make it as all men are carnivorous. That's what we learned. Now conclusion 1 कहता है some herbivorous are carnivorous. men herbivorous है, men carnivorous है, मतलब men herbivorous भी है, carnivorous भी है. That means there are some herbivorous which are carnivorous straight away. That means this conclusion is right. I can't say no to that. The second says all herbivorous is carnivorous. Now I have 2 cases here. Case number 1, मैं M के बाहर H, M के बाहर C, तो I can make H के बाहर C, all herbivorous carnivorous हो जाएगा. और मैं ऐसे भी बना सकता हूं all C के बाहर H. इसमें केस में सारे herbivorous carnivorous नहीं है. कौन से नहीं है? ये जो बाहर हैं ये सारे herbivorous carnivorous नहीं है. नाउ कंक्लूजन क्या होता है? वी डिस्कस इट ऑलरेडी. कंक्लूजन है 100% केसेस के अंदर 100% केस जब आपका कंक्लूजन हर बार सेम रहता है, दैट इज योर कंक्लूजन. नाउ इन दिस केस ऑल herbivorous आर नॉट carnivorous. दैट मीन्स दिस कंक्लूजन इज नॉट राइट. इट इज रॉन्ग conclusion because in 100% cases there's one case I have where I can show that herbivorous सारे के सारे carnivorous नहीं है. That means this is not a right conclusion I have. This is a wrong conclusion. मेरा आंसर हो जाएगा option number 1 follows. That means only this conclusion is right. करना क्या है ब्रीफ में समझो. अब दोनों conclusions के अंदर गिवन था आपको R, some herbivorous are, all herbivorous are. जब भी आपको R दिया जाए या S दिया जाए, इसका मतलब है कि ये एक डेफिनेट कंक्लूजन है.
इसका मतलब है ये डेफिनेट कंक्लूजन है। आप कह सकते हो ये भी तो है, ये है नहीं, ये हो सकता है, ये केस हो सकता है, ये केस भी हो सकता है। डेफिनेटली सारे हर्बीवोरस कार्निवोरस नहीं है और ना ही सारे कार्निवोरस हर्बीवोरस हैं, वी कांट से फॉर श्योर। तो अगर आपके पास इसको समझने का सिंपल तरीका है, अगर आर या इज मतलब डेफिनेट कंक्लूजन आपके कंक्लूजन्स में है, आप इसको प्रूव करो रॉन्ग, ट्राई टू प्रूव द कंक्लूजन रॉन्ग। अगर आपने रॉन्ग प्रूव कर दिया, you have proved it wrong, that means the conclusion is not right, it's wrong conclusion, ये conclusion है ही नहीं। बट अगर आप उसको नहीं प्रूव कर पाए wrong, not proved wrong, अगर आप उसको wrong प्रूव नहीं कर पाए, that means that is a right conclusion you have. I hope it is quite clear. अगर आपको R या इस स्टेटमेंट में है, that means that is a definite conclusion. डेफिनेट कंक्लूजन को अगर आपको चेक करना है, ट्राई टू प्रूव इट रॉन्ग। अगर ये रॉन्ग प्रूव हो गया तो आंसर रॉन्ग, और अगर ये रॉन्ग प्रूव नहीं हो रहा आपसे, मतलब दैट इज अ राइट आंसर। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल ऑन दैट। एग्जांपल नंबर 2 वी हैव ऑल इल्यूजन इज मैजिक। तो मैं इसको कैसे ड्रॉ कर सकता हूं? ऑल इल्यूजन इज मैजिक, and then I have all magic is science. All magic is science. Now the first conclusion, all illusion is science. Now I के बाहर m के बाहर s, that means I can make this figure like this. मैं इसको इस तरह बना सकता हूं। Now the first conclusion says all illusion is science. सारे illusion magic is science. That means all illusion are science. This is right. The second says some science is magic. Some science is magic also. That means this is also right. तो मेरे दोनों कंक्लूजन ठीक है। Is this clear? Raise your hand if it's not clear to anyone. Okay, great. Look at the next example now. Number 3 now. All soldiers are in army. सारे सोल्जर्स आर्मी में हैं, दैट मीन्स आई राइट एस एंड आउटसाइड आई राइट आर्मी, एंड नो इंजीनियर इज इन आर्मी। कोई भी इंजीनियर आर्मी में नहीं है। इंजीनियर अलग, आर्मी अलग। नाउ नो इंजीनियर इज सोल्जर, इज दैट अ कंक्लूजन? अब इसको गलत अगर प्रूव करना है नो इंजीनियर इज सोल्जर को, तो मुझे इंजीनियर और सोल्जर को मिक्स करना पड़ेगा ताकि मैं कह सकूं इंजीनियर सोल्जर है। क्या मैं कर सकता हूं? इंजीनियर को सोल्जर में जाने के लिए ए के थ्रू जाना पड़ेगा, बट इंजीनियर ए के थ्रू जा ही नहीं सकता। दैट मीन्स दिस फिगर आई कैन मेक इट लाइक हियर, इंजीनियर इज आउटसाइड आर्मी, सो ये वाला फिगर मेरा जो कंबाइन हो गया इसके अंदर। नाउ द कंक्लूजन सेज नो इंजीनियर इज सोल्जर। मैं इसको चाहकर भी गलत प्रूव नहीं कर सकता, आई कांट प्रूव इट रॉन्ग, दैट मीन्स दिस इज राइट। एंड सम इंजीनियर आर सोल्जर्स, they are not, I have proved it wrong, that means this is not the answer. Is this also clear? The next example, now all carrots are vegetables. I can make it like सारी की सारी carrots vegetables हैं, and all radishes are vegetables. सारी रेडिश वेजिटेबल्स है। नोटिस वन थिंग, मैं पहले दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग बनाता हूं। मैं एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट उसी में इंक्लूड इमीडिएटली नहीं करता हूं। उसका रीजन है, बड़ा सिंपल रीजन है। अगर मैंने पहले ही फिगर को कंबाइन कर दिया बिना कंक्लूजन पढ़े, तो मैं ऑटोमेटिकली प्री डिटरमाइंड थिंकिंग के ऊपर चला जाऊंगा, एंड दैट विल गिव मी अ रॉन्ग आंसर। तो पहले हमेशा अलग अलग बनाओ। नाउ द फर्स्ट कंक्लूजन सेज सम वेजिटेबल इज कैरेट। सम वेजिटेबल इज कैरेट, दैट इज राइट। We have drawn it like this. हमने ड्रू किया था ऐसे, इसको ड्रॉ किया था। all B are, all A are B, some B are A. तो all radish are vegetable, some vegetable are radish. तो some vegetable is carrot, some vegetable is carrot, some vegetable is radish. ठीक है, that is right. I can't prove it wrong. ये ठीक है। सेकंड कहता है some radish may be, may be। अभी तक मैंने आपको बताया are और is. Now may be जब भी आ जाए
या मे बी नॉट आ जाए, दैट मीन दिस इज नॉट अ डेफिनेट कंक्लूजन। डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी काइंड ऑफ स्टफ है। तो अगर ये पॉसिबिलिटी की तरह है तो इसका मतलब मैं इसको कोशिश करूंगा, प्रूव करूंगा राइट। ट्राई टू प्रूव इट राइट। अगर आप इसको प्रूव कर गए, इफ यू हैव प्रूव्ड इट राइट, तो मतलब ये राइट है, ये ठीक है। और अगर आप इसको नहीं प्रूव कर पाए, नॉट प्रूवन राइट, तो जब राइट प्रूव ही नहीं कर पाए तो मतलब ये रॉन्ग है। तो पहले था आर और एस, तो वी आर ट्राइंग टू प्रूव इट रॉन्ग, रॉन्ग प्रूव हो गया, गलत है। नाउ वी आर डूइंग ट्राइंग टू प्रूव इट राइट, बिकॉज वहां पर मे बी और मे नॉट बी है। अगर राइट प्रूव हो गया तो राइट है। नाउ दिस केस रेडिश मे बी कैरेट। नाउ कैरेट एंड रेडिश दोनों ही वेजिटेबल के अंदर है। अगर मैं चाहूं तो रेडिश को ऐसे बना सकता हूं, और चाहूं तो रेडिश को बाहर भी बना सकता हूं। अंडरस्टैंड द डिफरेंस केयरफुली। अगर मैं रेडिश को ऐसे बना दूं तो रेडिश कैरेट नहीं है, और अगर मैं रेडिश को ऐसे बना दूं तो रेडिश कैरेट है। मतलब हो तो सकती है, कॉमन सेंस यूज नहीं करना। मूली और गाजर सेम नहीं होते, लेकिन उन्होंने बोला है कि आपको कॉमन सेंस को यूज नहीं करना। तो मतलब सम रेडिश मे बी कैरेट, यस दैट इज राइट, इट मे बी। अगर क्वेश्चन लिखा आ जाता आर कैरेट तो वो गलत होता, क्योंकि इस केस में हो सकते थे। तो वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, बहुत पतली लाइन है, बहुत बारीक डिफरेंस है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर मे बी है प्रूव करो राइट है, मे नॉट भी है प्रूव करो राइट है, और अगर आर या इज है तो प्रूव करो रॉन्ग है, दैट इज इट। इज दिस क्लियर? Raise your hand if it is not clear to anyone, please. Let's take another example. All cars are buses. That means all cars are buses. Some buses are trucks. So I can make it like this. Some buses are trucks. Now some trucks are cars. अब कार बस के अंदर है, बस ट्रक हो सकती है मतलब आई एम सॉरी, इट इज सम ऑफ द बसेस आर ट्रक्स। ये कंक्लूजन हमारा अलग है, दैट इज ऑल कार्स आर ट्रक्स। नाउ राइट, नाउ कंक्लूजन नंबर 1, सम ट्रक्स आर कार्स। मुझे इसको गलत प्रूव करना है, आर लिखा हुआ है। आई विल नॉट गो अहेड एंड प्रूव इट राइट बिकॉज आर है। सम ट्रक्स आर कार्स मतलब मुझे ये दिखाना है ट्रक कार नहीं है। नाउ बी के साथ टी का इंटरसेक्शन है, तो आई कैन मेक टी हियर। अब आप कहो सी के साथ मिला दो सर, हो जाएगा। हो सकता है नहीं, हो सकता है, दैट इज ओनली डिफरेंस। तो सम ट्रक्स आर कार्स, आई कैन प्रूव नहीं, कार ट्रक नहीं है। इट्स रॉन्ग आंसर, आई हैव प्रूवन इट रॉन्ग, मैंने गलत प्रूव कर दिया। अब कहता है ऑल कार्स आर ट्रक्स, एक भी नहीं है, दोनों कंक्लूजन गलत है। क्योंकि ऑल कार्स आर ट्रक्स को गलत दिखाने के लिए मुझे एक भी कार दिखा दूं ट्रक नहीं है, मेरा गलत हो जाएगा। एंड आई कैन शो इवन नॉट अ सिंगल कार इज अ ट्रक, तो ये भी डेफिनेट नहीं है, ये भी डेफिनेट नहीं है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? दिस इज द कंसेप्ट वी हैव, सम एग्जांपल्स व्हिच वी हैड। अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट